Dear student, today I will be discuss Mesopotamian people and their culture. Mary was situated in a prime location for trade. Copper, wood, oil, tin, wine, and many other things were carried in boats along the river between the south and the mineral rich countries like Syria, Turkey, and Lebanon. Boats carrying wood, wine, grinding stones, and oil jars stopped at Mary when they were going to southern cities. Officials of this city used to go abroad, inspected the cargo, and were charging the 1/10 of the total value of the goods before giving permission to the boat to continue downstream. Most important few tablets refers to copper from Analasia, the land of Cyprus. In those days, this land was known for tin and copper. Trade of bronze was a great importance because bronze was used for making tools and weapons. Nomadic communities of the western desert migrated into the prosperous agricultural land of Mesopotamia. They brought their flocks over here. These people came in as harvest laborers or hired soldiers or herders. They became prosperous and settled down there. Few of them gained power to establish their own rule. These people included the communities of Akkadians, Assyrians, Amorites, and Armenians. The king of Mary belonged to Amorites community. Their dress was different from the original inhabitants of the region. They not only respected the gods of Mesopotamia but also built a temple at Mary for Dagon god of the steppe. Thus Mesopotamian culture and society were open to different people and cultures. The lifelines of the Mesopotamian civilization was because of this intermixture. The place or palace of the king Jimrilim at Mary was a large structure. It covered an area of 2.4 hectares and had 260 rooms. It was the residence of the royal family and was the hub of administration and a place of production, especially of precious metal ornaments. It was quite famous everywhere, and even a minor king came from North Syria just to see this palace. A number of food items were presented for the king's tables each day. These includes bread, flour, fish, meat, beer, wine, and fruit. He probably
at in a or around courtyard in the company of many others. There was only one entrance of the palace, and that was on the north. The large open courtyards were beautifully paved. The king met foreign dignitaries and his own people in a room with wall paintings. मारीनगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य सामान नावों द्वारा फरात नदी के मार्ग से दक्षिण और तुर्की, सीरिया तथा लेबनान के उच्च प्रदेशों के बीच ले जाया जाता था। मारीनगर की समृद्धि का आधार व्यापार था। दक्षिणी नगरों में घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी, शराब तथा तेल ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकारी लदे हुए सामान की जांच करते थे और उसमें लदे माल के मूल्य का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे, जो विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। यह द्वीप उन दिनों तांबे और टीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार मारीनगर व्यापार तथा समृद्धि की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध था, अद्वितीय था। मेसोपोटामिया के समृद्ध कृषि प्रदेश में खानाबदोश समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से रहते थे। ये गणेरिए गर्मियों में अपने साथ अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। वे फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिक के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो यहाँ अपना शासन भी स्थापित करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये लोग अकदी, एमोराइट, असीरियाई, आर्मेनियन जाति के थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ की मूल निवासियों से भिन्न होती थी। उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं को सम्मान देने के साथ साथ मारी नगर में एस्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए एक मंदिर भी बनवाया था। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के मिश्रण का रूप था, जिसने वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न की थी और उसकी संस्कृति को समृद्ध बनाया था। मारी का राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था। इसमें 260 कक्ष बने हुए थे। यह वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान होने के साथ साथ प्रशासन तथा कीमती धातुओं के आभूषण बनाने का मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में यह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि इसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया था। राजा के भोजन की मेज पर प्रतिदिन भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। इसमें रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा आदि शामिल होता था। वह संभवतः अपने साथियों के साथ बड़े आंगन में बैठकर भोजन करता था। राजमहल का केवल एक ही प्रवेश द्वार होता था, जो उत्तर की ओर स्थित था। महल के विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों तथा अपने प्रमुख लोगों से उस कमरे में मिलता था जहां भित्ति चित्र बने हुए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मारी नगर व्यापार काफ़ी समृद्ध थी। मेसोपोटामिया का समाज और संस्कृति विभिन्न समुदायों का मिश्रण था तथा जिमरिलियल के मारी स्थित राजभवन और राजमहल का क्षेत्र
काफ़ी भव्य था, जो आसपास के लोगों के द्वारा देखने के लिए आना होता था। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के समाज और संस्कृति काफ़ी विकसित थी और भव्य स्वरूप से संबंधित था।